Assalamualaikum dear students, welcome to the course of Sports Psychology. I am here course instructor Nazir Yaqub with a new lecture in the sports psychology field. Today's lecture is about drugs in sports. You have seen doping test activities before the competition in different games and news about the doping test clear or not clear. The doping test is performed in order to identify whether this athlete is using any kind of banned substance or not. Or when the doping test is clear, athletes are allowed to participate in that particular game. So therefore, there are a number of banned substances that are banned to be used in different sports. They are banned due to their psychological and neurological effects that can harm any person in the long term. For example, a few drugs intake can reduce a person's physical ability and immunity in the longer term. At the time of participation in the game, person may feel more energetic, but after effects of that substance may be quite harmful and may cause even cancer or the death of the person. Still, a few athletes prefer to use these substances in order to get success in the field and to win their games instead of focusing on their abilities only. So today's lecture main contents are: what is a drug, categories of drugs, side effects, why a sports person takes drugs, performance enhancing drugs, list of performance enhancing drugs, and list of drugs and with an example of a sport it may be used in and why it would be taken. So the first part, what is a drug? Basically an introduction. A substance that can be taken in a variety of ways to produce physical and or psychological effects on the person taking it, but may also cause some effects that are both unpleasant and unwanted. Those unpleasant and unwanted effects are known as side effects. कोई भी person एक substance लेता है जो कि कोई भी फिजिकल उसके अंदर इफेक्ट कॉज कर सकता है या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स कॉज कर सकता है। फिजिकल इफेक्ट्स में पर्सन के अंदर फिजिकल एनर्जी जो है वो बूस्ट अप कर देते हैं सब्सटेंसेस, और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के अंदर इफेक्ट साइकोलॉजिकल इफेक्ट इस किस्म के हो सकते हैं कि पर्सन जो है वो अंडर स्ट्रेस कम आता है, प्रेशर के अंदर कम आता है और काम रहता है, जिसकी वजह से अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। क्योंकि लॉन्गर टर्म में आप अगर फिर स्ट्रेस के अंदर रहते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, यू मे बी इफेक्टेड बाय दैट स्ट्रेस एंड योर परफॉर्मेंस मे बी नेगेटिवली इफेक्टेड। आपकी परफॉर्मेंस उस स्ट्रेस की वजह से कम हो सकती है। लेकिन जब ये सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं, पर्सन अंडर स्ट्रेस नहीं आता, वो उसके अंदर अराउजल का लेवल जो है वो पर्टिकुलर एक लेवल तक रहता है, जिसकी वजह से अच्छे इफेक्ट्स उसके ऊपर आते हैं और परफॉर्मेंस उसकी इनहेंस होती है। ये सारे के सारे जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनके कुछ अनप्लेजेंट और अनवांटेड इफेक्ट्स भी होते हैं जिनको हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं। एवरी सब्सटेंस हैज इट्स इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स एज वेल। नाउ लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट्स। डोपिंग कब से स्टार्ट हुई स्पोर्ट्स के अंदर, इसको कब से यूज़ किया जा रहा है, इसके बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देखते हैं। Doping refers to the practice of taking a prohibited substance to enhance performance in competitive sport. Athletes have been using special diets and potions to boost their strength and endurance since ancient Greece. In the 1920s, it became clear that controls on drug use in sport were needed. In 1928, the International Association of Athletics Federations, the sports world governing body, became the first international sports federation to ban doping. But restrictions were ineffective without testing, which wasn't introduced on a widespread basis until the 1970s.
The most common types of performance-enhancing drugs used in sport are stimulants, androgenic agents like anabolic steroids, hormones, diuretics, and masking agents. Anabolic steroid abuse made global headlines during the 1988 Seoul Olympics, when Canadian sprinter Ben Johnson tested positive in the first high-profile doping case of the Games. In the 1990s, improved testing methods led to a significant decline in doping in a number of sports, but the phenomenon of blood doping marked a worrying new trend. Virtually undetectable, it increases the blood's ability to carry oxygen, increasing stamina and performance. The World Anti-Doping Agency, known as WADA, was set up in 1999 in the wake of a doping scandal which had engulfed the Tour de France the previous year. Disgraced US cyclist Lance Armstrong is one of sport's most famous drugs cheats. The 7-time Tour de France champion was stripped of his titles and banned from the sport for life after admitting taking banned substances throughout his career. In November 2015, World Athletics chiefs banned Russia from international competitions after an independent commission set up by the Anti-Doping Agency found evidence of institutionalized doping. Now, categories of drugs. There are two main categories of drugs. The first category is performance enhancing drugs. The second one is recreational drugs. More particular topic of today's lecture is performance enhancing drugs, because we are studying drugs use in athletes, and athletes mostly use drugs as in order to enhance their performance. That's why only performance enhancing drugs will be discussed in much more detail as compared to the recreational drugs. However, a brief introduction of recreational drugs will also be provided in the last section of this lecture. What is a side effect? All drugs have side effects. A side effect of some drugs is that they are addictive. This is as true of nicotine and alcohol as it is often of heroin and cocaine. कोई भी ड्रग जिसका कोई ऐसा इफेक्ट होता है जिसकी वजह से उस पर्सन के ऊपर उसका वो इफेक्ट वो नहीं चाह रहा होता कि हो, जो उसका अनवांटेड या अनप्लेजेंट इफेक्ट होता है वो साइड इफेक्ट कहलाता है। अब हर एक मेन जो साइड इफेक्ट किसी भी ड्रग का होता है वो है उसका एडिक्टिव नेचर होना। और एडिक्शन आपको किसी भी चीज़ की हो सकती है, निकोटीन अल्कोहल से लेके हेरोइन और कोकेन तक। हेरोइन और कोकेन ऐसे एडिक्शंस हैं जिसके विथड्रॉल इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और पर्सन की जो कंडीशन है वो वर्सन हो जाती है। सेम इसी तरह से निकोटीन और अल्कोहल भी साइड इफेक्ट्स रखते हैं, बट विद अ माइल्ड कैटेगरी। उनके जो विथड्रॉल सिम्टम्स हैं वो इतनी ज़्यादा सिवियर नहीं होती, इस वजह से पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको इस चीज़ का इस तरह से हाईलाइट नहीं हो पाते हैं, इस वजह से ज़्यादा उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। इन पेशेंट हमें वो नज़र नहीं आते हैं, हॉस्पिटल्स में उनको नहीं लेके जाया जाता, क्योंकि इसकी जो विथड्रॉल सिम्टम्स हैं वो मैनेजेबल हैं, या उनका निकोटीन और अल्कोहल की अवेलेबिलिटी रिलेटिवली ज़्यादा बेहतर क्वांटिटी में हो जाती है और वो विथड्रॉल सिम्टम्स इस लिहाज से मैनेज हो जाती हैं। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन बिकम्स एडिक्टेड टू यूज ड्रग्स इट इज़ ऑफन वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप। जब एक पर्सन जो है किसी भी ड्रग का एडिक्ट हो जाता है तो उसके लिए उस ड्रग को गिव अप करना बहुत मुश्किल होता है। मोस्ट ड्रग्स हैव फिजिकल साइड इफेक्ट्स which can range from high blood pressure to insomnia and even death. मोस्टली जो ड्रग्स हैं उनके साइड इफेक्ट्स के अंदर हाई ब्लड प्रेशर से लेके डेथ तक के एक फ्लो चलता है। सिवियरिटी लेवल कुछ भी हो सकता है, वो हाई ब्लड प्रेशर से स्टार्ट होके इंसोमिया भी कॉज कर सकती हैं वो ड्रग्स, और पर्सन को इमरजेंसी कंडीशंस में भी लेके जा सकती हैं एंड इवन डेथ भी कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है what do you think is the most important reason a performer takes drugs? Read through and number the top 3. Be prepared to explain your answer.
आपके पास एक पिक्चर है यहाँ पे, इस पिक्चर के अंदर जो हमारे पास मल्टीपल रीजंस हैं किसी भी एथलीट के पास जो ड्रग्स यूज करता है। कौन कौन सी ऐसी रीजन हो सकती हैं किसी भी एथलीट के पास जिनकी वजह से वो ड्रग को यूज करता है, किसी भी ड्रग को? आपने कोई से 3 जो आइडेंटिफाई करनी है रीजंस और अपने पास उनको नोट डाउन कर लेना है। हम वन बाय वन देखते हैं कौन कौन सी रीजंस हैं। राइट, टॉप राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। टू मीट एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स। कोई एथलीट इस वजह से भी ड्रग को यूज कर सकता है कि कोच की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है दैट यू मस्ट विन द गेम। और दूसरी जो कंडीशन है वो हो सकती है विलिंग टू रिस्क चीटिंग फॉर पब्लिक एक्लेम। एक पर्सन जो है वो चीटिंग करना चाहता है, पब्लिक की तरफ से उसको इसके जो अप्रिसिएशन है उसको कंफर्म करने के लिए वो चीटिंग करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इस वजह से भी वो इसको लेना चाहता है, ड्रग को यूज करना चाहे ताकि अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करके अब टॉप लेवल पे आ सके, टॉप एथलीट्स में जो है खुद को एंटर कर सके। नेक्स्ट, नेचुरल एबिलिटी नॉट गुड इनफ। उस एथलीट के पास अपनी जो नेचुरल एबिलिटी है, नेचुरल स्टेमिना है, वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो गेम को विन कर सके या कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। फोर्थ वन है बेटर रिजल्ट्स लीड टू बेटर स्पॉन्सर्स एंड एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर वो अच्छे रिजल्ट देगा तो अच्छे स्पॉन्सर्स आएंगे और जिसकी वजह से नेक्स्ट जो है वो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वजह से भी वो अपने आप को इनके पब्लिक के लिए हाईलाइट करने के लिए न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज के ऊपर आने के लिए भी ड्रग्स को यूज कर सकता है। विल टू विन ओवरराइड्स मॉरल कंसाइंस। अपना जो उसका ज़मीर है उसके ऊपर भी हावी आने के लिए, उसका ज़मीर जो है वो इस चीज़ को ब्लेम नहीं कर रहा कि हाँ ये गलत है आप ना करो, बल्कि वो उस चीज़ को जो है वो सही समझ के कर रहा है। नेक्स्ट है मेक द मोस्ट आउट ऑफ अ शॉर्ट स्पोर्टिंग लाइफ। वो चाह रहा है कि वो जल्दी जल्दी नेक्स्ट लेवल्स जो है उनको क्रॉस कर ले, अपनी स्पोर्टिंग लाइफ जो है, स्पोर्ट्स की जो लाइफ है, स्पोर्ट्स का जो टेन्योर है उसे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ले। इस वजह से अगर वो अब टॉप पे आ जाता है तो नेक्स्ट लेवल जो है उसको जल्दी अचीव करने में वो कामयाब हो जाएगा। इस वजह से भी वो मोटिवेट होता है कि वो परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स यूज करे। नेक्स्ट, विनिंग गिव्स फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। एथलीट्स को विनिंग की वजह से फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इस वजह से भी वो इस चीज़ के लिए मोटिवेट होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर सकूं। उसके लिए बेशक उसे ड्रग्स यूज़ करनी पड़े। ऐसा कब होता है? जब कोई भी एथलीट अच्छी परफॉर्मेंस देता है उसे कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, फाइनेंशियल रिवॉर्ड से मिलते हैं। अगर किसी पर्सन को घर में फाइनेंशियल मुश्किलात का सामना है, कोई वो रिस्ट्रिक्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट रखता है, वो उसे उसे अगर फाइनेंस चाहिए है तो वो डेफिनेटली कोशिश करेगा कि मैं कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दूँ कि मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके। तो इस वजह से भी वो एक्टिवेट हो जाते हैं इस चीज़ के लिए कि वो परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग को यूटिलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिज़ायर टू बी द बेस्ट एट ऑल कॉस्ट। कोई एथलीट हर हाल में बेहतरीन बनना चाहता है, इस वजह से भी ड्रग का यूज़ कर सकता है। देन टू रिकवर फ्रॉम इंजरी क्विकर और टू मेक मास्क पेन। अगर कोई एथलीट इंजर हो जाता है तो अपनी इंजरी से जल्दी रिकवर करने के लिए ड्रग का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जैसे हीरोइन है, मॉर्फिन है, वो ऐसे इफ़ेक्ट्स रखती हैं कि पेन जो है वो फील नहीं होती, पर्सन को रिलैक्स फीलिंग आती है, उसकी वजह से पेन रिलीविंग होती हैं ये ड्रग्स। तो वो पेन को मास्क टू मास्क पेन मीन कि पेन को मिनिमाइज करने के लिए, उसकी सेंसेशन को मिनिमाइज करने के लिए ड्रग को यूज़ करते हैं ताकि वो जल्दी रिकवर होकर फील्ड के अंदर पहुंच सके। लास्ट हमारे पास है इन्फ्लुएंस बाय अदर्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इमोरली। अगर उन्होंने किसी और को इमोरल वे में परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट करते हुए देखा हो तो ये चीज़ भी उनके लिए एक मोटिवेटर का रोल प्ले करती है और वो बस किसी को रोल मॉडल बना के अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। नाउ परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स
can enhance a person's performance in some way, either in physical activity and training or in daily life. किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए या किसी भी डेली लाइफ की रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए किसी भी पर्सन की परफॉर्मेंस को एनहेंस करने की एबिलिटी ये ड्रग्स रखती हैं. They include some drugs that are socially acceptable and many that are illegal. कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनको सोशली एक्सेप्ट किया जाता है, कुछ ऐसी हैं जिन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता. List of performance enhancing drugs include beta blockers, anabolic steroids, diuretics, stimulants, narcotic analgesics, peptide hormone including erythropoietin, that is also known as EPO. ये ऐसी ड्रग्स हैं जिनको एथलीट्स जो है अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए यूज़ करते हैं. वन बाय वन हम देखते हैं इनकी डिटेल. एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स. It increases muscle mass and develop bone growth, therefore increase strength, while at the same time allow the athlete to train harder and recover quicker. एक तो कंडीशन ये है कि बोन मास को जो है वो डेवलप करने के लिए, मसल मास को और बोन की ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा. दूसरी कंडीशन ये है कि अगर पर्सन इंजर है तो रिकवरी के लिए इसको जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है. और अगर ट्रेनिंग सख्त हो गई है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग और आपको लगाने पड़ रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम फटीग, आप इसको एथलीट्स जो है इसको यूज़ करते हैं. अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं. ये एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स जो हैं ये एग्रेशन कॉज करते हैं. दे इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स. ऐसे एथलीट्स जो इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं वो हार्ट अटैक और जो स्ट्रोक्स हैं उसके लिए अंडर रिस्क होते हैं. हाई ब्लड प्रेशर कॉज करता है, लिवर डिजीज हो सकती हैं, और वुमेन अगर इसे यूज़ करें तो उनके अंदर इनफर्टिलिटी आ सकती है. ये मेन कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स के देखे जाते हैं. इसके बाद हमारे पास है बीटा ब्लॉकर्स. दे हेल्प people to be more calm, lower heart rate, and improve control and concentration. As a result, stress levels and anxiety are reduced. बीटा ब्लॉकर्स के थ्रू क्या होता है कि ऐसी गेम्स जिनके अंदर बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहने की ज़रूरत होती है, जैसे शूटिंग है, पर्सन को रिलैक्स रहते हुए शूट करना होता है, निशाना लगाना होता है और कंसंट्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होता है. ऐसी गेम्स के अंदर पर्सन जो है वो बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ करता है ताकि स्ट्रेस लेवल को जो है वो कम से कम रखा जाए और काम रहते हुए परफॉर्मेंस अच्छी दी जा सके. इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं दे इंक्लूड नोजिया एंड डायरिया, टायर्डनेस, डिप्रेशन, इंसोमिया एंड नाइटमेयर्स. ये ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो बीटा ब्लॉकर्स जो एथलीट यूज़ करते हैं उनके अंदर कॉमनली देखे गए हैं. नेक्स्ट हमारे पास है डायरेटिक्स. Used to increase the amount of urine produced, causing rapid weight loss in sports where performers are required to compete within strict weight boundaries, for example boxers or jockeys. ऐसी गेम्स जिनके अंदर रिस्ट्रिक्शन होती है वेट के लिए, वेट के अकॉर्डिंग जो है वो गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है, वहाँ उन गेम्स के अंदर डायरेटिक्स को यूज़ करते हैं अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए या वेट को लूज़ करने के लिए. कंट्रोल मीन के उस लिमिट तक रहे, वेट लूज़ के ज़्यादा हो गया, अब हमने उसको बैक पे लेके आना है. तो डायरेटिक्स के थ्रू वो अपने वेट को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं. Diuretics may also be taken in an attempt to reduce the concentration of any other banned substance that may be present in the urine. जो दूसरी कंडीशन है डायरेटिक्स को यूज़ करने की वो ये है कि अगर कोई बैंड सब्सटेंस एथलीट ने यूज़ कर लिया है तो उसकी कंसंट्रेशन को बॉडी से कम करने के लिए भी डायरेटिक्स को यूज़ किया जाएगा. कैसे? डायरेटिक्स जो है वो आपकी बॉडी में जिस तरह से बाउल मूवमेंट जो है उसे फास्ट रन कर देंगे, ज़्यादा जल्दी बाउल मूवमेंट होगी. फ्रीक्वेंटली बाउल मूवमेंट होने की वजह से लूज मोशन हो सकते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जितना भी सब्सटेंस का लेवल होगा, बैंड सब्सटेंस अगर यूज़ किया हुआ है तो उसमें से मैक्सिमम निकल जाएगा. जितना भी स्टमक के अंदर मौजूद होगा वो जल्दी एक्सक्लूड हो जाएगा बॉडी से. और अगर फ़ौरन टेस्ट करवाया जाए तो उसमें कंसंट्रेशन थोड़ी सी लिमिटेड आएगी एज़ कम्पेयर टू द स्टेट कि अगर डायरेटिक्स यूज़ ना किए जाए और बैंड सब्सटेंस यूज़ किया हुआ हो
और बाउल मूवमेंट के अंदर फ्रिक्वेंटली परफॉर्मेंस ना आ रही हो या फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट ना हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर टेस्ट किया जाए तो उस पर्सन के अंदर हमें ज़्यादा नज़र आ सकती है बैंड सब्सटेंस की वैल्यू एज कम्पेयर टू दैट पर्सन जिसने डायरेटिक्स यूज़ की हों। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके अंदर शामिल है डिहाइड्रेशन विच कैन कॉज डिजीनेस, मसल क्रैम्प्स, हेडेक्स एंड नोजिया। ये ऐसी सिम्टम्स हैं जो हमें आमतौर पर नज़र आती हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से नज़र आती हैं इन एथलीट्स में डायरेटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स होने के साथ साथ। इनके अलावा भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, पर्सन के अंदर फिजिकल वीकनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा, डिहाइड्रेशन की वजह से परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, जिससे पर्सन गेम से बाहर भी जा सकता है, कंपटीशन से बाहर भी उसको निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। These help people to be more alert, enabling them to think more quickly. Using these drugs help to overcome tiredness. They are especially useful to offset the effects of lactic acid on muscles. अब नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स जो हैं वो किसी भी पर्सन को अलर्ट रखने में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। कोई भी पर्सन जो है उसकी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है। ये ड्रग्स टायर्डनेस को ओवरकम करने में हेल्पफुल होती हैं। पर्सन के अंदर जो फटीग का लेवल है वो कम फील होता है उसे इस ड्रग के यूज़ की वजह से। प्लस इसके इस्तेमाल की वजह से लैक्टिक एसिड का जो इफेक्ट है जो फटीग कॉज करता है मसल्स के अंदर वो फील नहीं होता। इसके जो मेन साइड इफेक्ट्स हैं दे इंक्लूड लॉस ऑफ बैलेंस, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इमोशनल इफेक्ट्स इंक्लूडिंग hallucinations जो कि मॉर्फिन की वजह से बाज़ औक़ात आते हैं। मॉर्फिन एक ड्रग है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स के अंदर सब कैटेगरी है जिसको इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। अब यहाँ पे हर ड्रग जो है हम जितनी भी स्टडी कर रहे हैं उनमें से हर एक का अगर फ़ायदा है तो साथ-साथ नुकसान भी मौजूद है। एक फ़ायदे के लिए 2 से 3 नुकसान कम से कम बर्दाश्त करने पड़ते हैं किसी भी एथलीट को। तो इस वजह से इन जो ड्रग्स हैं इनको बैंड सब्सटेंसेस के अंदर लिया गया है। इनको प्रेफर नहीं किया जाता यूज़ करना, एथलीट्स को अवॉइड करना चाहिए। इन ऑर्डर टू boost their performance they should use some other areas, some other sources। जैसे इनकी जो डाइट है उसके अंदर मल्टीविटामिन्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, स्पेसिफिक इनको जो है वो डाइट प्रोवाइड की जाती है। इनके लिए सप्लीमेंट्स के जो है वो सप्लीमेंट्स तैयार किए जाते हैं एथलीट्स के लिए, स्पेशल सप्लीमेंट्स विदाउट एनी बैंड सब्सटेंस उनको तैयार किया जाता है। और वाटर जो उनको इनटेक करवाया जाता है उसके अंदर भी वो सप्लीमेंट्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन्स दैट इज आल्सो नोन एज EPO, erythropoietin। The specific performance enhancing quality of these drugs, especially erythropoietin EPO, is that they increase the number of red blood cells, allowing the body to carry extra oxygen and disperse waste products and lactic acid। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रेड ब्लड सेल को बढ़ाएगा और बॉडी को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है उसे गेन करने के लिए तैयार करेगा। और जो बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड है जो उसके बॉडी में फटीग कॉज करने का सबब बनता है उसे बॉडी से एक्सक्लूड करने का काम करेगा। दिस इफेक्ट इंक्रीजेज एरोबिक कैपेसिटी। किसी भी पर्सन के अंदर एरोबिक कैपेसिटी इन्हेंस कर देता है। ज़्यादा लंबे अरसे तक जो एंड्रेंस वाली स्पोर्ट्स हैं उनके अंदर जहाँ पे आपको अपना स्टेमिना सस्टेन करना पड़ता है फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, उनमें इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। which is useful in for example longer distance events and cycle events। साइकिलिंग और जो लॉन्गर रनिंग है उसके अंदर स्टेमिना जो है वो सस्टेन करना पड़ता है आपको फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। दैट्स व्हाई these drugs are used in order to enhance your own stamina for the longest situation। They can cause strokes and abnormal growth। इनकी वजह से स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं और बॉडी के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ भी हो सकती है। EPO thickens the blood making it hard for blood to pass through the capillaries। जब आपकी कैपिलरीज में से ब्लड जो है मुश्किल से पास होगा गाढ़ा होने की वजह से ऑटोमेटिकली हार्ट अटैक
या स्ट्रोक्स के जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। इस वजह से ये भी अपने फ़ायदे के साथ साथ एक मेजर नुकसान रखता है जिससे अवॉइड करना चाहिए एथलीट्स को। नेक्स्ट जो ड्रग हमारे पास है बेंज सब्सटेंसेस में, दैट इज स्टिमुलेंट्स। These help people to be more alert, enabling them to think more quickly. They are especially useful to offset the effects of lactic acid on muscles. स्टिमुलेंट्स एक ऐसी ड्रग है जिसकी वजह से पर्सन जो है वो उसकी थिंकिंग का प्रोसेस तेज हो जाता है, अलर्ट रहता है ज़्यादातर, और लैक्टिक एसिड का इफेक्ट बॉडी के मास के ऊपर और मसल्स के ऊपर कम होता है। ऑटोमेटिकली पर्सन ज़्यादा देर तक परफॉर्मेंस दे सकता है। Its side effects include insomnia, aggression, irregular heartbeat, increased heart rate, high blood pressure and addiction. ऐसे एथलीट जो इसको एक दफ़ा यूज़ करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस आती है तो वो बार बार प्रेफर करते हैं इसका यूजेज। जब बार बार करेंगे तो वो एडिक्शन का शिकार हो जाएंगे। Now there is a list of drug with an example of a sport it may be used in and why it would be taken. सबसे पहले हमारे पास ड्रग है एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स। जिस गेम में यूज़ होती है वो है बॉक्सिंग, और इसका फ़ायदा क्या है? इट इंक्रीजेज स्ट्रेंथ एंड एज अ रिजल्ट मोर पावरफुल पंचेस। नेक्स्ट जो ड्रग हमारे पास है वो है बीटा ब्लॉकर्स। आर्चरी में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, शूटिंग में भी इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके एडवांटेजेस में शामिल है इट कीप्स द एथलीट काम एंड द रिजल्ट विल बी स्टेडी एमिंग, और ऑटोमेटिकली फिर परफॉर्मेंस अच्छी होगी जब स्टेडी एमिंग होगी। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है डायरेटिक्स। स्पोर्ट है बॉक्सिंग, और इसका एडवांटेज ये है मीट द फाइटिंग वेट। फाइट करने के लिए जो एक वेट है, जो लिमिट है वेट की, उसको मीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है नारकोटिक एनाल्जेसिक्स। स्पोर्ट जो है वो हमारे पास फुटबॉल है, गेम फुटबॉल के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। एडवांटेज ये है कैन परफॉर्म वाइल्स इंजर। एथलीट इंजर्ड भी हों तो वो गेम के अंदर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? पेन जो है वो कम फील होती है नारकोटिक एनाल्जेसिक्स के इस्तेमाल के बाद। पेन की सेंसेशन रिड्यूस हो जाती है, इस वजह से इंजरी के बावजूद वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन जब सिवियर इंजरी होती है जिसके अंदर किसी भी पर्सन का कोई स्पेसिफिक मसल जो है वो ब्रेक हो जाता है, वहाँ पे परफॉर्मेंस के चांसेस, अच्छी परफॉर्मेंस के चांसेस नहीं होते। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है पेप्टाइड हार्मोन्स। Sport is long distance cyclists, and advantage is it increases red blood cells, as a result carry more oxygen and person can perform for the longer duration. Last drug is stimulants. Sport is goalkeeping, and advantage is react quickly to the shots and higher rate of success will be the result of usage of this drug. Now we will discuss neurological complications of recreational drugs एंड ड्रग अब्यूज़। जो हमारे पास पिछली डिटेल थी वो सारी की सारी परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स के बारे में थी। अब हमारे पास आ रही है रिक्रिएशनल ड्रग्स की डिटेल। उसमें कौन कौन सी ड्रग्स शामिल हैं? ड्रग के अंदर हमारे पास कोकीन है, एम्फेटामाइंस है, एमडीएमए ओपिएट्स है और हीरोइन है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। ये कोई, और इसके अलावा भी कोई भी ड्रग हो सकती है। अब ये सारी की सारी मोस्ट ऑफ देम आर यूज फ्रॉम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें कोई भी यूज़ हो सकता है। एमडीएमए इंजेक्शन के थ्रू होती है। हीरोइन को इनहेलेशन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा आईवी भी यूज़ किया जाता है इसका। जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उसको भी इनहेलेशन के थ्रू यूज़ किया जाता है। अब ये ड्रग्स इस किस्म की हैं कि जिनके थ्रू आपको, अगर आप इनका ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस ये काज कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोकीन की वजह से आपको इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकती है, इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है, पोस्टीरियर रिवर्सिबल इंसेफ्लोपैथी हो सकती है, सेरेब्रल वेस्कुलाइटिस हो सकती है, सेरेब्रल एडिमा हो सकता है, सेरेब्रल एट्रोफी हो सकती है।
ये ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपकी जो मेंटल कैपेसिटीज हैं वो डैमेज हो जाती हैं। सेम इस तरह से एम्फेटामाइंस हैं, वो इंट्राक्रैनियल हेमरेज कॉज कर सकती हैं। मोस्ट ऑफ द साइड इफेक्ट्स इंक्लूड द सेम एज ऑफ कोकेन। जो एक्स्ट्रा चीज उसके अंदर है वो वही सारी चीजें हैं जो हमारे पास कोकीन कॉज कर रही है। कोकीन और एम्फेटामाइन के साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो सेम है। एमडीएमए है हमारे पास। एमडीएमए इज बेसिकली मिथाइल एनिडाइऑक्साइड मेथाम्फेटामाइन है हमारे पास। इसका दूसरा नाम जो है वो एक्सटेसी भी है। दिस इज अ एम्फेटामाइन डेरिवेटिव विद साइकोस्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज। आपको साइकोस्टिमुलेंट कौन सी ड्रग्स होती हैं जो आपको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो हैं उसके अंदर आ जाते हैं, आपके बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं उनकी एक्टिवेशन बढ़ा देती हैं, वो सारी की सारी साइकोस्टिमुलेंट ड्रग्स कहलाती हैं। अब एमडीएमए जो है इंजेक्शन के थ्रू इसको एडमिनिस्टर करते हैं। इस्केमेटिक स्ट्रोक और सेरेब्रल एडिमा इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ओपिएट्स के भी इसी तरह से हैं, वो सेरेब्रल एट्रोफी भी कॉज कर सकती है। हिरवन जो है, हिरवन वेपर जो है वो लिक्वियोएन्सेफेलोपैथी कॉज कर सकती है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं वो टॉक्सिक लिक्वियोएन्सेफेलोपैथी कॉज कर सकते हैं और सेरेब्रल एट्रोफी कॉज कर सकते हैं। सेरेब्रल सेप्टिक एम्बुलाई और एब्सेस में माइकोटिक एनिरिज्म और एम्बोलिक स्ट्रोक भी इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। ऐसी न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं जो ये एथलीट फेस कर सकते हैं। एथलीट के अलावा जनरल पॉपुलेशन में भी ये रिक्रिएशनल ड्रग्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसके अलावा कैनबिस भी आम यूज़ की जाती है। कैनबिस के अलावा अल्कोहल, अगर एडिक्शन की तरफ आ जाएं तो निकोटीन और अल्कोहल का इस्तेमाल भी आम होता है। और इसको अल्कोहल और निकोटीन के यूज़ को और कैनबिस के यूज़ को जो हमारे पास एथलीट्स हैं या नॉन एथलीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अवॉइडेबल समझते भी नहीं हैं। लेकिन ऑल ऑफ दीज कॉज सिवियर एडिक्शन। कैनबिस खास तौर पे फौरी तौर पे जब पर्सन छोड़ता है कैनबिस यूजेज तो उसे इतना उस चीज़ के विड्रॉल सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है 15 से 20 दिन तक वो स्टोर रहती है, उसके बाद जो है विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं वो पीक पे नजर आना शुरू होते हैं। तो इसलिए फौरी तौर पर जब छोड़ता है उस टाइम उसे लगता है कि आई एम ओके विद दिस ड्रग, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसे उसके साइड इफेक्ट्स का अंदाजा होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट here is an assignment for you people. Find out ways to screen out drug usage in athlete. Athletes जो हैं वो drug usage किस तरह से करते हैं आपकी नज़र में recent era के अंदर इन 2022 में आप किस किस तरह से एथलीट्स को ड्रग यूजेज करते हुए देखते हैं, उस चीज़ को आपने जो है वो स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिख के आना है। I hope you have understood today's lecture. If you have any queries about today's lecture and any kind of feedback, you may send your responses on the given email address. Thank you for your attention. Thank you very much.